قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو اور ساتھیوں، یہ ایسی ایک محفل ہے جس محفل کے اندر ہمیں اور آپ کو دور پڑنا ہے۔ جیسے کسی دیوانے کا میسج مل جائے کہ تمہارا معشوق آ رہا ہے تو اس کو اپنا گھر نہیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے، اس میں ہر امتی کو اپنا کام چھوڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور جس دنیا کے اندر آج ہم کروڑ پتی بننے کی خواہش اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، آخر اللہ نے اس دنیا کو کس کے لیے بنایا، اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم کو کس کے طریقے کو اپنانا تھا، کس طریقے پہ چلنا تھا، کیسے اپنی زندگی گزارنی تھی، یہ ہم سب بھول گئے۔ حتیٰ امکان کی ہم بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، چند بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیچ میں بڑے قابل حضرت مولانا فرقان صاحب دعوت برکاتہم العالی حسین پوروا سے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے سامنے بولنے میں تو ہمارے ایک ایک پرجے ہل گئے ہیں، کیونکہ جب کوئی بڑا قابل بیٹھا ہو تو چھوٹے کو بولنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت والا کا یہ خلوص ہے جو انہوں نے ہم کو بیٹھنے کی اجازت دیا، تو ہم تھوڑی سی آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لیں گے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہوا تبھی تو اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کے اندر آج ہم لوگوں کو پیدا کر دیا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اگر یہ امت ہمارے نقش قدم پر چل کر چلی آئے گی تو آخرت میں صرف 2 زندگی ملنے والی ہے، تیسری کوئی زندگی باقی نہیں۔ ایک جنت کی زندگی ملنے والی ہے جو لامحالہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک جہنم کی زندگی ملنے والی ہے جو لامحالہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جو ہمیں جلا کر ختم کر دے، بھسم کر دے اور راکھ بنا دے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ جلا کر ختم نہیں کرتی ہے، ٹارچر کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، ختم نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ صلاح بتاتا ہے، اے بیٹا یہ جو میں تجھے راستہ بتا رہا ہوں موبائل پہ، یہ جو تجھے لوکیشن بھیج رہا ہوں، تو اگر بالکل اسی طریقے سے چلا آئے گا ہم تک تو تکلیف تجھے ہونے والی نہیں ہے، جب ہم تک پہنچ گیا تو تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ہمارے آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، جو امت ہماری یہ امت اگر ہمارے نقش قدم پر چلے گی، ہمارے طریقے کو فالو کرے گی، تو روز محشر کے اندر اسے رسوا ہونا نہیں پڑے گا۔ لیکن آج کیا ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت گن کر کے ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ عالم لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو سارے اعمال ہمارے جا چکے ہوں گے، نیکی بھی جا چکی ہوگی، برائی بھی جا چکی ہوگی، کوئی چیز باقی نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ جائے۔ یہ ساری چیزیں فرشتے پہلے ہی اللہ کی فہرست میں جمع کر چکے ہوگی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ حساب و کتاب کے لیے آئے گا، تمہیں زندہ کرے گا، تو اگر
निशानी को देख लिया, उस चीज को देख लिया, तो वो बहुत नरम मामला आपके साथ करेगा और बहुत तरीके से और बहुत नरमी लहजे के अंदर तुम्हारे से बात करेगा। क्या है? क्या है वो दाढ़ी है। कहा मोमिन का सारे नेक अमाल बुरे अमाल चले जाते हैं अल्लाह के पास, लेकिन एक ऐसी सुन्नत है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत बनाकर लेकर जाता है, वो उसके साथ। जब फरिश्ते कफन को हटाते और चेहरे पर दाढ़ी देख लेते तो क्या कहते? एक ही चीज इसको लाना था जो इसके साथ मौजूद है। इसके साथ नरमियत का मामला करो, इसके साथ आसानी का मामला करो। क्यों? जो इसके साथ आना था वो तो इसके पास है। लेकिन आज हम, दाढ़ी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत को कोई मिटाना चाहे मिटा सकता है भाई? नहीं मिटा सकता। लेकिन दाढ़ी जब वो बनवा देता है नाई की दुकान में जाने के बाद, बताओ वो मानती है? वो कहती है कि हमें बना दिया गया है, हम नहीं निकलेंगे। तीसरे दिन फिर निकल आती है। क्यों? मेरा अल्लाह मेरा इंतजार करता है। जो इंसान खुद बदलना ना चाहे उसे अल्लाह नहीं बदला करता। जो इंसान खुद बदलना चाहता है, अल्लाह की मदद सामने हाल होती है कि ये मुझसे तौबा कर रहा है, ये हमसे नदामत कर रहा है, ये हमसे माफी चाह रहा है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ करने पे काबिल है। और वो किसी को भी माफ करते उसे कोई सवाल करने वाला है भाई? नहीं है। क्यों? वो रब्बुल आलमीन पूरे जहान का मालिक है, मुल्कों का मालिक है, उससे कोई सवाल करने वाला मौजूद नहीं। क्या कहता अल्लाह? तो दाढ़ी फिर निकल आती है कि कहीं मेरे बंदे ने तौबा कर लिया और इसके दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत जाग गई तो ये दाढ़ी रखेगा। कितनी बार बनवाओ? जवानी से लेके 50 साल तक तकरीबन क्या हजारों मरतबा अस्तुरा नहीं चलाया होगा, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी आना बंद नहीं होती। ये क्या है? ये खुदा की वहदानियत है, ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा चाहे एक अस्तुरा चलने के बाद तुम्हारी मौत आ जाए, कब्रों में उतार दिया जाए, फिर भी दाढ़ी ना आए, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अल्लाह चाहता है कि मेरे महबूब की जितने भी उम्मती हैं मेरे महबूब की तरह बनकर आए, वो सर्टिफिकेट हासिल करके आए जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, कलमा हमने पढ़ लिया, ईमान हमारे अंदर आ गया, ईमान वाले हो गए, जन्नत के हकदार हो गए, बहुत अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताइए, एक मोटरसाइकिल ले ली जाए नहीं और उसको ला करके घर के दरवाजे पे खड़ी कर दी जाए और उसमें पेट्रोल न डाला जाए और तमन्ना ये था कि हमने मोटरसाइकिल इसलिए खरीदी है कि हम इस पे सफर करेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, दोस्त अहबाब के पास जाएंगे, अपने काम को अंजाम देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम इसमें कभी पेट्रोल नहीं डालेंगे। बताओ वो चलेगी? स्टार्ट होगी? काहे के लिए लाए थे? अपने मंजिल को आसान करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए लाए थे क्या मोटरसाइकिल। लेकिन जब हमने पेट्रोल नहीं डाला तो वो स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या हो रही है? स्टार्ट क्यों? उसको गिजा चाहिए, उसको खुराक चाहिए। जब तक खुराक नहीं दोगे तुम्हारे काबिल नहीं बनेगी, तुम्हें बैठा कर नहीं ले जाएगी, तुमको वहां से जगह भी अपनी नहीं छोड़ेगी। क्यों? वो मोटरसाइकिल है, उसको गिजा चाहिए, क्योंकि आपने उसे खरीदा है तो कंपनी ने आपसे ये बताया था अगर इस पे सवारी करना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। ये नहीं बताता
जाते हैं, इतने की एवरेज मिलती है। तो ये क्या है? मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कह दीजिए जो कलमा पड़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। मोटरसाइकिल ले आइए, सवारी आसान हो जाएगी। 2 घंटे का सफर 5 मिनट में तय किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला तो काम नहीं आई। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ये जुमला आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया, बिल्कुल इसी तरीके से है। जब हमने इसको पढ़ लिया, हमारे अंदर ये दाखिल हो गया, दिलों के अंदर उतर गया, तो हमें इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा और इसी के ऊपर अमल करके हमें दुनिया से जाना होगा, फिर हम कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं होंगे। जैसे गिजा मोटरसाइकिल की पेट्रोल था, ऐसे ही गिजा इसका क्या है? नमाज है। ऐसे ही इसका गिजा क्या है? कुरान की तिलावत है। ऐसे इसकी गिजा क्या है? सदकात है। ऐसे इसकी गिजा क्या है? फितरा है। ऐसे इसकी गिजा क्या है? अगर हम साहिब हैसियत है तो हज है, हज बैतुल्लाह, काबा बैतुल्लाह की जियारत करना। क्या है ये? ईमान का गिजा है और हम सब इससे महरूम हैं। बताओ भाई, जन्नत में कितनी आसानी से दाखिल हो जाए, कितना धक्का लगाना पड़ेगा। और सही मायने में तो बात यह है कि हम धक्का पलेट भी नहीं है। किसी के कहने पे हम मस्जिद भी आने के लिए तैयार नहीं है। जो कहने पर मस्जिद आता है उसे धक्का पलेट कहा जाता है, और जो अपने आप आता है उसे अल्लाह का महबूब कहा जाता है, उसे अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहा जाता है। लेकिन जो इंसान धक्का लगाने पर भी ना आए, बताओ उसके अंदर कितनी ईमान की राजी बाकी बची है। एक मोबाइल लेने के लिए जाओ तो कंपनी ने साथ में एक चार्जर लगा के रखा है। कहता है मोबाइल कितना बड़ा ले लो, कितना महंगा ले लो, 1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल ले लो, लेकिन ये चार्जर आपका ले जाए। अच्छा भाई, काहे ले जाए पड़िए? हमने मोबाइल लिया है, 1.5 लाख रुपए का है, इसका चार्जर की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? इसको तो ऐसे ही चार्ज रहना चाहिए। हमने 1.5 लाख रुपया अपने गाड़ी मेहनत कमाई की लगाया है, हम चार्जर नहीं ले जाएंगे। बताओ मेरे दोस्तों, मोबाइल काम आएगा? क्यों? कंपनी कह रही है लगाना पड़ेगा, कंपनी कह रही है चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम कह रहे हैं हम चार्जर नहीं ले जाएंगे। कामयाबी की बात कर रहे हैं या नाकामी की बात कर रहे हैं? वो इसलिए कि जब तक चार्जर नहीं लगाएंगे बैटरी चार्ज नहीं होगी, और जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा उस मोबाइल। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जब हमारे अंदर ईमान दाखिल हो गया, तो उस ईमान को बाकी रखने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे चार्ज करने के लिए 5 मरतबा बताया। जबकि मोबाइल चार्ज करने के लिए 24 घंटे में 1 मरतबा कंपनी बताती है, लेकिन तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ईमान को बाकी रखना चाहते हो, ताजा करना चाहते हो, इसमें जान पैदा करना चाहते हो, इस कलमे की बदौलत अगर तुम जन्नत में आना चाहते हो, तो एक बात का ख्याल रखना, नमाज का जाना करना, नमाज मत छोड़ना। जो जब तुम नियत करते हो मैं 2 रकात नमाज रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, तो जब काबे की तरफ कनेक्ट होते हो तो वहां से ईमान चार्ज होता है। और जिस चीज को 5 मरतबा चार्ज किया जाए, क्या वो धोखा दे सकता है? जब तुम बुरे काम के लिए बढ़ोगे, नमाज रोक देगी। जब चोरी करने के लिए बढ़ोगे, नमाज रोक देगी। जब तुम किसी गलत काम के लिए पैर उठेगा, नमाज रोक देगी। अगर किसी गलत काम के लिए नमाज तुम्हें रोक नहीं पाती, नमाज भी पढ़ते हो, गलत भी होता है, तो ये समझ लेना कि नमाज अभी हमारी नमाज नहीं बनी, नमाज हमारी अभी इतनी काबिल नहीं बनी है कि हमें बचा ले, हमें बुराई से बचा ले। इसलिए मेरे दोस्तों, आज भी अल्लाह तबारक ताला ने जब इंसानों की तारीफ फरमाई तो कुरान मजीद के अंदर नकल कर दिया, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में इंसान की तारीफ फरमा रहा है। मैं कसम खाता हूँ मंजीर की और जैतून की और तौर सीनीन की और वो आमन वाला
क्या वजह है? अल्लाह ने इंसान को बनाया तो कुरान मजीद में नकल फरमा दिया। क्यों? जब कोई अपने लिए कोई चीज बनाता है तो उसे खूबसूरत बनाता है, अच्छा खरीद कर लाता है, अच्छा मार्केट से लेके आता है। इसी तरीके से अल्लाह ने जब इंसानों को पैदा किया तो कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर जितनी भी चीजों को पैदा किया, मैंने इंसान और जिन्नात के लिए पैदा किया, लेकिन मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जो अपनी इबादत के लिए बना रहा हो, अल्लाह उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा। एक मोबाइल अगर हम लेकर के आते हैं तो हम मार्केट में तहलका मचा देते हैं, देखो इतना खूबसूरत से मैं अपने पास रखता हूँ। और जो अल्लाह, जो रहीम है, जो करीम है, जो माफ करने वाला है, जो माफ करने वाला है, जो हमें पालने वाला है, हमें खिलाने वाला है, जो हमें इज्जत बख्शने वाला है, जो हमें जिल्लत देने वाला है, ऐसा रब जिससे हर चीज पे काबिले कुदरत का कब्जा है, वो रब मुझसे मुखातिब होकर कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू सारी चीजों से थक गया, तू सारी चीजों से परेशान हो गया, दुनिया वालों ने तुझे धक्का मार दिया, तुझे कोई कबूल नहीं करता, चल तू मेरे पास आ जा, आज मेरे दरवाजे पे आ जा, मुझसे नदामत कर ले, मुझसे तौबा कर ले और कह दे, ऐ बारे इलाही, मुझसे खता हो गई और मैं भूल गया था, मैं भटक गया था, ऐ अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे, ऐसा मुझे तौफीक अता फरमा दे। जितनी जिंदगी बची है अब से लेकर जब तक मेरे जनाजे की नमाज ना पढ़ ली जाए, मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नेक काम करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, अल्लाह उसे माफ करेगा। अल्लाह खुद इस बात का इंतजार करते हैं। जो बंदे के जो रब ने इतना खूबसूरत तुम्हें बनाया है, कोई तो लाजिक होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं उस बंदे को इसलिए खूबसूरत बना रहा हूँ ताकि वो मेरी इबादत करेगा तो वो अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। आज हम उसी इबादत से महरूम हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया। इसलिए हमको चाहिए कि हम नमाजी बने, अपने घर वालों को नमाजी बनाएं, बच्चों को नमाजी बनाएं। क्यों? जब हम नमाजी नहीं होंगे, जब हम दीनदार नहीं होंगे तो बच्चों में तरबियत दीन वाली नहीं होगी, दीनदारी वाली नहीं होगी, नमाज वाली नहीं होगी। तो जैसे आज हम जाहिर है, कल हमारे बच्चे भी जाहिर है। इसलिए अगर पूरे साल में 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर इस प्रोग्राम को रखते हो तो ये समझा करो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ लाए तो हम लोगों को क्या तोहफा दिया। अल्लाह ने जो अपने महबूब को तोहफा दिया था और कायद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तोहफा दिया। एक रब अपने महबूब को तोहफा दे रहा है और हमारा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अपनी उम्मत को तोहफा दे रहे हैं। इसको संभाल कर रखना, इसके ऊपर अमल करना, और जब तुमको हम तक आना हो तो इस रास्ते को मत छोड़ो। आज हम उसी से भटकते हैं। तो जब हम नमाजी होंगे, हमारे बच्चे नमाजी होंगे, जब हम नमाजी होंगे, हमारी बीवियां नमाजी होंगे, जब हम नमाजी होंगे, हमारी बेटियां नमाजी होंगी। एक नमाजी अगर एक बेनमाजी एक घर में हो, उस घर की मनहूसियत नहीं जाती है, और जिस घर में बेनमाजी पनप रहे हो उस घर का हालत क्या होगा मेरे दोस्तों, ये खुद समझो आप। और उसके बाद में मेरा मुख्तसर सा कहना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, नमाज सिखाओ, और जिस दिन बीवियां नमाजी हो जाएंगी, दौलत हमारे कदमों में होगी, रोजी कमाना नहीं पड़ेगा। जैसे अल्लाह तबारक ताला ने मुकद्दर में रोजी लिख दिया है, उसके पीछे मत भागो, जितना मुकद्दर में अल्लाह दे देगा, लेकिन भागना था जिस चीज को उसे छोड़। हमें भागना था कब्र की तैयारी के लिए, हमें भागना था हश्र की तैयारी के लिए, हमें भागना था अल्लाह का शुक्र होने के लिए, हमें भागना